Hello friend, welcome to my channel. This is CA Rakhi Agarwal. Today's topic is related to type of income tax return and its due date. कितने टाइप के रिटर्न होते हैं और इसका क्या ड्यू डेट है, मतलब कितने टाइप ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न होते हैं, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। और ये कब तक फाइल करना पड़ता है, क्या ड्यू डेट्स है, आज उसके बारे में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। और रिटर्न किस लिए लगाना पड़ता है वो भी हम लोग जानेंगे, किस लिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिटर्न्स आर देयर, रिटर्न्स कितने टाइप के होते हैं और इसका ड्यू डेट रिटर्न्स का कब तक लगाना पड़ता है, आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न एंड इट्स ड्यू डेट, व्हेन टू फाइल, व्हाट वाज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग income tax return. So introduction, before starting we will just go through the introduction why income tax return is to be filed, while government has introduced these ITRs, because filing income tax return is a way of informing the government about the total income that you have earned during a particular financial year, and that you have paid taxes on that income accordingly. Means it's a way to inform the government. Income tax return is the way to inform the government about the total income earned during the year, during the financial year, what income you had earned, and you have paid taxes on that income accordingly, according to the statute prescribed by the government. Accordingly you have paid the taxes on that income or not. So it's a way to inform to the government. ITR, income tax return, is a form in which the taxpayer files information about his income earned and the tax applicable to his to the income tax department. So it is a form in which the taxpayer file the information, all the information related to his income. He has to file to the government at applicable rate, at applicable tax rate prescribed by the department, income tax department. They have to pay taxes on that income. So it's a way to inform to the government about the income, and on that income what taxes, or what taxes is applicable on that income is to be paid to the government. So the department has notified 7 various forms, that is ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6 and ITR 7. There are 7 forms are there for different categories of people, those who are earning what type of income. So it depend on the what income they are earning. So these ITRs are accordingly prescribed to them. Every taxpayer should file his ITR on or before specified date. Some dates are also specified by the department, that look, you have earning this income in the previous year, in the assessment year, till this date, which is prescribed by the department, that you have to file the your ITRs. The applicability of ITR form varies depend on the source of income of the taxpayers, the amount of income earned, and the category the taxpayer belongs to. The form which you select, it is depend on the category of the taxpayer, whether he is an individual or HUF or company, or whether trust, AOP, BOI, or is depend on the income what he is earning, whether he is earning income from capital gain, or income from salary, or income from business and profession, or income from partnership firm. It depend on the category of the taxpayers. Taxpayers will select according to his category of income, according to his in which category the taxpayer itself belongs, whether it's a company, whether it's an individual, or what kind of income he is earning, whether the income is more than 50 lakhs or less than 50 lakhs. So it depends on the applicability of ITR depends on the source of the income of the taxpayer, the amount of income earned by the taxpayer, and the category the taxpayer belongs to. So, in the according to these categories, the taxpayer will select their ITRs. So, this is the introduction. Now we will go about the discussion about the types of ITR. That there are 7 types of ITR. ITR 1 is applicable to whom? To which category of people? So ITR 1 is a Sahaj ITR.
it is applicable to for only the resident individuals who are the resident individual who belongs to India, citizen of India, and he resident in India. So these ITR is only for the resident individuals whose income is up to 50 lakhs, having a total income up to 50 lakhs, and also the income which he is earning, the individuals is earning from sources like salary, whether he is earning from salary or pension or one house property or income from any other sources like interest, family pension, dividend. So, and also agriculture, if any agriculture income up to 5,000. So these categories of people are eligible for ITR1. They are required to fill the ITR1. So having a total income up to 50 lakhs, and the sources from which sources? The sources is from whether from salary or pension, whether from house property, only one house property, not more than one, and whether from income from other sources. From income from other sources means that is whether the, FD income is there, whether bank interest is there, whether family pension is there, whether dividend is there, and agriculture income up to rupees 5,000. So these categories of person are eligible to file ITR1. ITR1 is not applicable to whom? Which category of person? ITR1 is not applicable. This return cannot be used by person who is a director of a company, who is a director of a company who has any unlisted equity shares at any time during the previous year. Means who hold any unlisted equity shares at any time during the previous year, or who has an asset including financial interest in any entity located outside India, or who has a signing authority in any account located outside India, or he has income from any sources outside India, or is a person in whose case the tax has been deducted under section 194N, means who has withdrawn more than 1 crore during the previous year, or is any person in whose case payment or deduction of tax deferred on ESOP has been deferred on ESOP, and who has brought forward losses or loss to be carried forward under any heads of income. So ये ITR1 सहज ITR1 इज एप्लीकेबल किस पे है? जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है, जिसका इनकम 50 लाख तक का है, जिसका और वो इनकम कहाँ से आना चाहिए? वो इनकम या तो सैलरी से आना चाहिए, या पेंशन से आना चाहिए, या आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसको आप लेट आउट कर रखे हो, वो रेंटिंग इनकम आना चाहिए, या फॉर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक अपने इंटरेस्ट, आपका कोई इंटरेस्ट है, एफडी का इंटरेस्ट, या बैंक से कोई इंटरेस्ट आ रहा है, फैमिली पेंशन है, डिविडेंड से कोई इनकम है, तो वो सब इनकम के लिए ITR1 एप्लीकेबल है। पर ITR1 एप्लीकेबल किसके लिए नहीं है? जो कि डायरेक्टर है, अगर कोई भी पर्सन डायरेक्टर है कोई कंपनी में, तो उनके लिए डायरेक्ट ITR1 एप्लीकेबल नहीं है। जो भी पर्सन होल्ड कर रखा अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब फाइनेंशियल एंड में नहीं हो, वो ड्यूरिंग द ईयर कोई भी टाइम अगर होल्ड किया हो एक भी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, तो उनके लिए ITR1 सहज नहीं है। जिनका एसेट आउटसाइड इंडिया है, अगर कोई भी एसेट है उनका आउटसाइड लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, उनके लिए ITR1 नहीं है। जिनका साइनिंग ऑथोरिटी, जो भी इंडिविजुअल है वो साइनिंग ऑथोरिटी हैज एन ऑथोरिटी टू साइन एन अकाउंट आउटसाइड इंडिया, तो उनके लिए भी ITR1 नहीं है। जिनका इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज लाइक फ्रॉम सोर्सेज आउटसाइड इंडिया, जो बाहर से इनकम कर रहे हैं, इंडिया के बाहर से इनकम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ITR1 नहीं है। और जिनका अगर वो पर्सन है जिनका TDS कटा है अंडर सेक्शन 194N में, उनके लिए भी ITR1 नहीं है। और इन केस ऑफ अ पर्सन जिनका TDS कटा है ESOP बेसिस पे, तो उनके लिए भी ITR1 नहीं। और जिनका भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है और लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड है। नाउ ITR2 किसके लिए एप्लीकेबल और किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? दिस रिटर्न इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड HUF। ये रिटर्न एप्लीकेबल होगा इंडिविजुअल्स के लिए और HUF के लिए, ठीक है। और ये रिटर्न एप्लीकेबल नहीं किसके लिए नहीं है? कोई भी इंडिविजुअल है और HUF है जो अपना इनकम
बिजनेस या प्रोफेशन से अर्न करते हैं, हैविंग इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो उनके लिए ये ITR 2 नहीं है। ITR 2 उन इंडिविजुअल्स या HUF के लिए है जिनके लिए ITR 1 नहीं होता है। सपोज ITR 1 नहीं, जो नहीं लगाता, ITR 3 नहीं लगाता, ITR 4 नहीं लगाता, उनके लिए ITR 2 होता है। ITR 2 क्या है, किसके लिए है? उन इंडिविजुअल्स के लिए और HUF के लिए। पहला बात तो ये इंडिविजुअल और HUF के लिए ही होता है, और जिनका इनकम जो कि नॉन रेसिडेंट है, जो इंडिया के सिटीजन नहीं है, नॉन रेसिडेंट है, और जो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मींस जो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो जो इन कैटेगरी के पीपल होते हैं उनके लिए ITR 2 है। और जो HUF के लिए जिनका इनकम मोर देन 50 lakhs है, हैविंग इनकम ITR 1 लेस देन अप टू 50 lakhs है। ITR 2 उन कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए है जिनका इनकम मोर देन 50 lakhs है। 50 लाख से ज्यादा अगर आपका इनकम है फ्रॉम सैलरी, फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फ्रॉम कैपिटल गेन, फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज, तो आपको ITR 2 लगाना पड़ेगा। और आप नॉन रेसिडेंट हो तो आपके लिए ITR 2, मीन अगर आपका एसेट, आप डायरेक्टर ऑफ इन अ कंपनी हो तो आपके लिए ITR 2 है। आप होल्ड करते हो इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर तो आपके लिए ITR 2 है। अगर आप एसेट आउटसाइड इंडिया, आपके एसेट आउटसाइड इंडिया है, आपने एक्वायर कर रखा है, तो आपके लिए ITR 2 है। अगर आपने कुछ आपका TDS कटा अंडर सेक्शन 194N में, तो आपके लिए ITR 2 है। आपका अगर TDS कटा अंडर सेक्शन ESOP में, तो आपके लिए ITR 2 है। अगर आपका साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया है, तो आपके लिए ITR 2 है। और जिसका ब्रॉड फॉरवर्ड, और जिसको अपना ब्रॉड फॉरवर्ड और कैरी फॉरवर्ड का लॉसेस लेना है, बेनिफिट लेना है, उनके लिए भी ITR 2 है, तो उनको ITR 2 लगाना पड़ेगा। हैविंग इनकम, इनकम वही होगा, सैलरी से है या मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी है, ITR 1 जिसका वन हाउस प्रॉपर्टी है, ITR 2 के लिए मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन से अगर आपका कोई इनकम है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और इनकम फ्रॉम सोर्सेज आउटसाइड इंडिया, होल्डिंग एसेट आउटसाइड इंडिया। अगर कोई इनकम है आपका आउटसाइड इंडिया और होल्डिंग एसेट आउटसाइड इंडिया, तो उसके लिए भी ITR 2 है। और ITR 2 किसके लिए नहीं है? जिसका इनकम, जो इंडिविजुअल्स और HUF बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस से अगर उनका कुछ, बिजनेस या प्रोफेशन से उनका कुछ इनकम आता है, तो उनके लिए ITR 2 नहीं है। सो आज हमने जाना ITR 1 किसके लिए, ITR 2 किस। Now the applicability of ITR 3. ITR 3 is applicable to whom? This return ITR 3 is applicable for individual and HUF and partnership firm who has having an income from business or profession. In case of partnership firm, whether they had drawn a salary, bonus, commission, um, or profit sharing ratio, anything is to be filed in ITR 3. So this ITR is applicable for individuals and HUF and partnership firm who is having their income from business and profession. This ITR is not applicable for those person who is filing their returns in who is filing their ITR 1, ITR 2 or ITR 4. If they are filing ITR 1, ITR 2 and ITR 4, that category of person are not applicable to file ITR 3. So ITR 3 is applicable for individuals and HUF and partnership firm who is earning their income from business and profit. ITR 4 एक सुगम ITR है। These return is applicable for individual और HUF. ये भी individuals और HUF के लिए applicable है who is resident other than non-ordinary resident. Means resident individuals के लिए ITR 4 है, जो कि जिनका की फर्म है other than LLP, LLP पे ITR 4 नहीं लगता, which is a resident partnership firm having a total income up to 50 lakhs, 50 lakhs तक का इनकम है, having an income from business, जो बिजनेस करके अपना इनकम कर रहे हैं, which is computed on presumptive basis like 44AD, 44ADA, 44AE, और इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज, और बिजनेस से भी जिनका इनकम है, और जिनका इनकम सैलरी, पेंशन, अदर सोर्सेज और एग्रीकल्चर इनकम अप टू, मीन्स इसमें बिजनेस का भी इनकम इंक्लूड कर दिया गया ITR 4 में। अगर आपका बिजनेस से भी इनकम है और आपका सैलरी से भी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम है,
अदर सोर्सेज से भी इनकम है तो आपको ITR 4 लगा। और ITR 4 किसके लिए नहीं एप्लीकेबल है? वो जिनका जो भी पर्सन है जो डायरेक्टर इन अ कंपनी, जो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रखे एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जिनका एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, जिनके पास साइनिंग अथॉरिटी है इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, जिनका इनकम फ्रॉम सोर्सेज आउटसाइड इंडिया है, और जिनका TDS करता है अंडर ईशॉप बेसिस पे जिनका TDS करता है, और जिनको बेनिफिट चाहिए ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का या कैरी फॉरवर्ड करने का, तो उनके लिए ITR 4 नहीं है। ITR 4 है रेसिडेंट के लिए, बट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट फर्म के लिए, अदर देन LLP, और वो भी रेसिडेंट फर्म होना चाहिए जिनका टोटल इनकम अप टू 50 lakhs होना चाहिए, और बिजनेस वो रेसिडेंट है फर्म के लिए एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल्स के एप्लीकेबल है, HUF के लिए एप्लीकेबल है, जो कि इनकम बिजनेस से अपना इनकम करते हैं, प्रोफेशन से अंडर सेक्शन 44AD ADDA, और उनका इनकम सैलरी से भी आता, हाउस प्रॉपर्टी से भी आता, अदर सोर्सेज से भी आता, तो उनके लिए ITR 4 सुगम है। Now ITR 5. ITR 5 is applicable to whom? ITR 5 is applicable to limited liability partnership, that is LLP. It is applicable to AOP, association of a person. It is applicable to BOI, body of individuals, artificial judicial person, state of deceased, state of insolvent. In case of insolvent, ITR 5 is to be filed. Business trust and investment fund. In these cases ITR 5 is required to be filed, means LLP वाले लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अगर आपकी है तो आप ITR 5 लगाइए, AOP आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो आप ITR 5 लगाइए, BOI है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स तो आप ITR 5 लगाइए, अब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है तो ITR 5 लगाइए, अब इंसॉल्वेंट कंपनी है तो आप ITR 5 लगाइए, डिसीज्ड है, स्टेट ऑफ डिसीज्ड, और बिजनेस ट्रस्ट एंड इन्वेस्टमेंट फंड के केस में भी आप ITR 5 लगा सकते हैं। सो ये सब केसेस में ITR 5 लगता है। और ITR 5 किस केस में एप्लीकेबल नहीं है? अगर आप इंडिविजुअल्स है, अगर आप HUF है, अगर आप कंपनी है, और दोज हु आर फाइलिंग ITR 7, जो ITR 7 लगा रहे हैं उन पे ITR 5 एप्लीकेबल नहीं होगा, इंडिविजुअल्स पे अप्लाई नहीं होता ITR 5, HUF है तो ITR 5 लगाने का कोई मतलब नहीं है, और कंपनी भी है तो कंपनी के लिए भी ITR 5 नहीं है, कंपनीज के लिए ITR 6 है, इंडिविजुअल HUF के लिए ITR 1 2 3 4 दिया गया है, और ITR 7 उनके लिए है जो ITR जिन पे ITR 5 नहीं लगता। सर्टन केसेस के लिए ITR 7 सर्टन केसेस के लिए जैसे 139(4)(a), 139(4)(b), उन केसेस के लिए ITR 7 लगता है। ITR 6 किसके लिए एप्लीकेबल है? ITR 6 उनके लिए एप्लीकेबल है जो कि कंपनीज है, जनरली बिग कंपनीज ITR 6 लगाती है, ITR स्मॉल कंपनीज, बिग कंपनीज का जो डेफिनेशन फुलफिल करती है वो ITR 6 लगाती है। कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11, वो कंपनी जो एग्जेम्पशन की चैरिटेबल इंस्टीट्यूशनल कंपनीज यहाँ पे नहीं आएंगी, अदर देन दैट सारी कंपनीज ITR 6 लगाएंगी। ITR 7 कौन सी कंपनीज लगाती है? कंपनीज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4)(a), जो भी ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट और अदर लीगल ऑब्लिगेशन होनली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस और इन पार्ट, तो उनके लिए ITR सेक्शन 139(4)(a बोलता है कि उनके लिए ITR 7 लगेगा। पॉलिटिकल पार्टी के लिए 139(4)(b) ITR 7, 139(4)(c) दैट इज साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, न्यूज एजेंसी, एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन रिफर टू इन सेक्शन 1023(a), इंस्टीट्यूशन रिफर टू इन सेक्शन 1023(b), फंड और इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और एनी हॉस्पिटल और अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन, मतलब साइंटिफिक रिसर्च, न्यूज एजेंसी, एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 1023(b), और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड, ये सब कंपनी जो है
पॉलिटिकल पार्टीज और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ये सब कंपनी जो ITR 7 लगाएंगी, उनके लिए ITR 7 एप्लीकेबल है। और अदर देन दीज कंपनीज, जो भी जनरल कंपनीज हैं वो ITR 6। और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, क्या ड्यू डेट है फाइलिंग का? अगर आप इंडिविजुअल्स हो, HUF है, AOP हो, BOI हो, टैक्स पेयर्स हुज अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, और आपका ऑडिट करवाने का कोई दरकार नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप ड्यू डेट, तो आपका ड्यू डेट है 31 जुलाई 2023 रिटर्न फाइलिंग करने, अनलेस एंड अनली अंटिल गवर्नमेंट कुछ एक्सटेंशन दे दे, लेकिन ओरिजिनल ड्यू डेट 31 जुलाई 2023 है। फॉर द पर्सन्स हु आर इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI टैक्स पेयर्स एंड हुज अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, उनके लिए ड्यू डेट है 31 जुलाई 2023। और कंपनी एसएससी है अगर, ड्यू डेट उनके लिए है 31 अक्टूबर 2020। Due date for ITR filing for an SSC who is required to get its accounted audited under the Income Tax Act और any other जिनका टैक्स ऑडिट होता है, उनके लिए 31 अक्टूबर। अगर पार्टनरशिप फर्म है उनके लिए भी 31 अक्टूबर 2023। ड्यू डेट फॉर ITR filing for an SSC who is a partner in a firm whose accounts are required to be audited, तो जिनका ऑडिट होता है उनके लिए डेट है 31 अक्टूबर 2023, और जिनका ऑडिट नहीं होता वो इंडिविजुअल HUF BOI के लिए 31 जुलाई। अब ड्यू डेट फॉर ITR फाइलिंग फॉर एन SSC, if an SSC is required to furnish a report of transfer pricing, audit in form number 3CEB, अगर उनका ट्रांसफर प्राइसिंग है केस, अगर वो फाइल करते हैं उसके लिए उनका ऑडिट रिपोर्ट बनता है। इफ द SSC is required to furnish an audit report of transfer pricing audit in form 3CEB, तब उनके लिए ड्यू डेट है फॉर फाइलिंग ITRs is 30th November 2023. This discussion is important. Then please like, subscribe my channel. Please share my channel. Thanking you for watching my video. If my content is beneficial for you, please subscribe.